Hello everyone. In the last video, we have studied circulatory system and in which we have studied the composition of blood. Okay, a part first, and in this part first, we have studied the composition of blood, and in which we have studied the RBCs and the plasma. Okay, so remaining composition of blood we will study today. So let us start. Yes. So last time we have started the circulatory system in human beings. Okay. So circulatory system is basically composed of a blood vascular system and the lymphatic system. So these two systems together, they form the human circulatory system. Okay. So both the system we are going to study one by one. So last time we have started this blood vascular system. So blood vascular system of humans consists of blood, heart and the blood vessels. These are the organs of this blood vascular system. These are the organs of this blood vascular system. So the structure and function of each organ is important to study in the blood vascular system. Okay, and this system carry out which functions? So this system carry out transport, homeostasis and the protection. So how this system is important we can see in this diagram. So here in this diagram there are different systems are there. This is the digestive system, then this is here in a pink color, this is the respiratory system, and in the middle you can see that there is the circulatory system, and at the see here one another system called as a urinary system, or we can say excretory system. So this digestive, excretory, respiratory, okay, and all these systems are interconnected, or they are with the help of the circulatory system. This circulatory system coordinate with each these systems and circulate or transport different substances or materials from one system to another, as well as to the from body tissue to the different systems. Okay, so very important, it coordinates the different systems. Okay, सारी जो different systems है वो different systems को एक दूसरे से coordinate indirectly link करने का काम करती है. For example, here it is a respiratory system. जो respiratory system का काम है intake of oxygen and the exhale of a carbon dioxide, और वो जो carbon dioxide है that initially that carbon dioxide enters into initially that carbon dioxide and also oxygen enters into blood and then they are circulated. Okay, so जो oxygen है respiratory system से वो blood में enter होता है और फिर body tissue को transport किया जाता है, और जो carbon dioxide है body tissue से वो भी circulatory system में enter होता है, उसके बाद में वो respiratory system को वापस return करके बाहर निकाल दिया जाता है. In the same way जो digestive system है, digestive system में से माउथ थ्रू आपने जो भी फूड लिया है वो फूड का सिंप्लीफिकेशन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद all that nutrients enter into circulatory system, और सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से सारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई किया जाता है. ओके, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे और एक सिस्टम है कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम. अब बॉडी में जो भी वेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी वेस्ट फॉर्म होता है सेल्स में, वो सेल्स सारा वेस्ट वो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज कर देते हैं, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ये ब्लड को किडनीज की तरफ लेके आती है. दैट इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, एंड ये किडनीज की तरफ किडनीज में ब्लड फिल्ट्रेशन होके वहां पे क्या हो जाता है, वेस्ट जो है ब्लड में से वो सेपरेट किया जाता है. सो इन दिस वे ऑल दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट सो with the help of this circulatory system. So बहुत important role play करती है circulatory system, and इसी तरह वो होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेडी और कांस्टेंट रखने का काम करती है. और तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज अ प्रोटेक्शन. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है पर्टिकुलरली वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं. सो वो भी हम डिटेल में देखेंगे. आज एक्चुअली हम WBCs देखने वाले हैं, एंड जो
और एक टाइप के सेल्स है दैट इज कॉल्ड एज ए थ्रोम्बोसाइट। सो ये जो चार्ट हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें से जो होल ब्लड है इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड दी फॉर्म एलिमेंट्स। सो फॉर्म एलिमेंट्स जो है तो फॉर्म एलिमेंट्स ये प्लाज्मा जो है 55% होता है टोटल ब्लड में, और 45% क्या होता है फॉर्म एलिमेंट्स यानी सेल्स आते हैं उसमें सारे, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ओके, और जो ब्लड का 55% जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में 90% 90 to 92% तो वाटर ही होता है, रिमेनिंग 8 to 10% ये सारे सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होंगे। उसके बाद अब ये क्या क्या होते हैं ये हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स गैसेस कौन कौन से होते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। इनका परसेंटेज भी देखा है, सो यू कैन गो फॉर दैट वीडियो। आज जो है हम और लास्ट टाइम हमने इरिथ्रोसाइट्स भी देखा है। ओके, सो आज हम देखेंगे ल्यूकोसाइट्स, ओके, एंड द प्लेटलेट्स। सो फॉर्म एलिमेंट्स में से ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स आज हम देखेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे। ओके, सो सी यस, तो देखिए यहाँ पे जो कलर व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स है दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइट्स भी उनको कहते हैं। अभी जो ल्यूकोसाइट्स है देयर ग्रीक मीनिंग ल्यूकोसाइट्स मींस ल्यूकोस मींस व्हाइट और काइटोस मींस सेल्स। सो इस तरह से ये बन जाता है ल्यूकोसाइट्स। अब होते कैसे ये सेल, दिस सेल्स आर कलरलेस। ओके, ये कलरलेस सेल्स है, न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड द शेप इज अमीबॉइड। शेप कैसा होता है, अमीबॉइड यानी कोई बहुत पर्टिकुलर ऐसा कोई शेप होता नहीं है उनका। सो ये अपना शेप जो है वो कुछ सिचुएशन के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज भी कर सकती है। ओके, सो दे आर अमीबॉइड सेल्स, जैसे अमीबा एनिमल होता है ना तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है। सो इन दिस वे दिस सेल्स आर अमीबॉइड सेल्स। और ये सेल्स का जो साइज है दे आर लार्जर देन आरबीसी। आरबीसी से क्या होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं। कितना होता है साइज, 8 to 15 माइक्रोमीटर, इतना इनका क्या होता है साइज होता है, 8 to 15 माइक्रोमीटर इन साइज। अब इनका लाइफ स्पैन तो 13 to 20 days इनका क्या होता है, वाला लाइफ स्पैन होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। ओके, दे शो दी वन ऑफ द एक्टिविटी। अब ये जो है ये सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन या प्रोसेस दिखाते हैं या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए डायपेडेसिस, दैट इज कॉल्ड एज ए डायपेडेसिस। तो क्या करते हैं ये डायपेडेसिस में, ड्यू टू देयर अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन मूव out of the capillary walls by a process, okay, called as a diapedesis। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो while flowing ये जो कैपिलरी से ये डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, कभी कभी जो कैपिलरी जो कैपिलरी जो वो पोरस होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स उन कैपिलरीज में होते हैं। तो कभी कभी ये जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या हो जाते हैं, ये उस कैपिलरी जो है ब्लड कैपिलरी, तो उसमें से ये व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर निकल आते हैं। ओके, और स्क्वीजिंग मूवमेंट करते हैं, यानी छोटा सा वो पोर होता है लेकिन उसमें से भी ये खुद को एडजस्ट करके ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। स्क्वीजिंग मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप उसको। सो या फिर अमीबॉइड मूवमेंट से ये क्या हो जाते हैं, कैपिलरी वॉल से बाहर आ जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस बोलते हैं। ओके, अब जो नॉर्मल एवरेज पर्सन है उसकी बॉडी में कितने डब्ल्यूबीसीज होते हैं, 5000 to 11,000 डब्ल्यूबीसीज पर mm³ ओके, इतने जो डब्ल्यूबीसीज है वो प्रेजेंट होते हैं एक हेल्दी नॉर्मल एडल्ट पर्सन में। ओके, नाउ जो डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोपोएसिस। The formation process of WBC is called as a leukopoiesis कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये होते कहाँ पर है, ये ल्यूकोपोएसिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो में होती है। और इसके साथ ही वो स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स, ये रीजन में भी, ये ऑर्गन्स में भी क्या होते हैं, WBCs फॉर्म होते हैं। Now, one another organ that's called the thymus and the Peyer's patches, वहां पर भी क्या होते हैं, तो ये WBCs के कुछ मैचुरेशन और कुछ प्रोसेसेस वहां पर भी कंप्लीट होते हैं, thymus and the Peyer's patches। ओके, नाउ अगर
WBCs का नंबर अगर इंक्रीज हो जाता है, ओके, द इंक्रीज नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड एज ए ल्यूकोसाइटोसिस, उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ओके। नाउ इफ द नंबर ऑफ WBCs डिक्रीजेस, ओके, ये तो हो गया इंक्रीज की बात। अगर डिक्रीज हो जाता है WBCs का नंबर और अगर वो लेस देन 4000 हो जाता है, कितना, 4000 से कम हो जाता है WBC का काउंट या नंबर, तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया, ओके। और ये किन कंडीशंस में होता है, कॉमनली इन HIV, ओके, जब HIV का इन्फेक्शन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज HIV। और जब HIV फुल ब्लोन हो जाता है और बहुत सारे डिसीजेस एक साथ पर्सन को हो जाता है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फुल ब्लोन कंडीशन जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज एड्स, ओके, उसको क्या कहते हैं, एड्स। सो HIV और एड्स में डिफरेंस है। HIV इज द इन्फेक्शन, तो उसमें पर्सन जो है वो डिसीज के साथ फाइट करके नॉर्मली जो लाइफ है वो लाइफ नॉर्मली वो जी सकता है, लेकिन एड्स में जो है उसको काफी परेशानियां होती है और बाद में उसका एंड तो डेथ ही होती है, ओके। एंड TB में भी क्या हो जाता है, WBC काउंट कम हो जाता है, और तो when the person is exposed to radiation and shock, then at that time also WBC count जो है वो कम हो जाता है, okay। Now अगर temporary increase in the number of WBC, अगर टेम्पररीली जो नंबर है WBC का वो अगर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। और इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन, वो ड्यू टू क्या हो जाएगा, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन, तो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाता है, उससे फाइट करने के लिए WBC का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ओके। और ये और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी ये नंबर जो है WBC का वो इंक्रीज होता है, एंड इन द न्यू बॉर्न बेबी ऑल्सो, ओके, द नंबर ऑफ WBC is increased। बट अगर ये WBC का नंबर जो है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से अगर हो रहा है, यानी जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज हो गया है, म्यूटेशंस हो गए, और वो म्यूटेशंस की वजह से अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो रहा है, यानी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो सेल डिवीजन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और पर्टिकुलरली कौन से सेल्स का, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनका अगर कंटिन्यूअस अगर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है और न्यू सेल्स कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहे हैं, then that condition is called as a blood cancer। उसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, which is called as a leukemia। उस टर्म को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, या फिर कॉमनली इसको कहते हैं दैट इज अ ब्लड कैंसर। तो ये जो WBC है, दे आर मेनली कंसर्न विद आवर डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो ये WBC करते हैं। तो देखिए अभी उनके काफी सारे टाइप्स है WBC के, तो कौन सा टाइप क्या काम करता है ये अभी हम देखेंगे डिटेल में। लेट्स सी, ओके। सो देखिए टाइप्स ऑफ WBCs अगर हम देखते हैं, तो इन द टाइप्स ऑफ WBCs देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल WBCs हमको पता है अभी कि वो कलरलेस है और इरेगुलर शेप है, अमीबॉइड हमने कहा है, इरेगुलर है, और उनका जो न्यूक्लियस है उनका वो न्यूक्लियस की भी अलग अलग शेप है। जो WBCs डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC है, तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का शेप भी अलग अलग है, एंड दैट्स व्हाई these WBCs are called as a polymorphism। They show the phenomenon called as a polymorphism, यानी वो polymorphic होते हैं, और phenomenon को कहते हैं polymorphism, यानी exist in variable form, different forms से उसके रूप होते हैं अलग अलग, ओके। तो अभी कौन कौन से मेन टू टाइप्स है WBCs के, एक तो है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा क्या है, अग्रैन्युलोसाइट्स, ओके। तो ये जो दो टाइप्स है, दे आर एक्चुअली according to the presence of granules and absence of granules in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रैन्युलोसाइट्स, और अगर नहीं है तो अग्रैन्युलोसाइट्स, ओके, सिंपल। तो these ये ग्रैन्युलोसाइट्स को देखते हैं अभी हम, ओके। सो ग्रैन्युलोसाइट्स कैसे होते हैं, सो ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, ये जो ग्रैन्युलोसाइट सेल होते हैं या WBCs होते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है ग्रैन्युलर होता है, यानी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद सो दैट दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ओके, PMN इन शॉर्ट ऐसे भी कहते हैं उनको, अभी ग्रैन्युलोसाइट्स को।
अब इनका जो न्यूक्लियस होता है, दे हैव द लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई। जो ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनमें भी सब टाइप्स है, तो वो उनमें जो न्यूक्लियाई होता है वो कैसा होता है, लोब्यूलेटेड, लोब्यूल्स होता है। डायग्राम देखेंगे अभी आप तो आपको समझ में आ जाएगा। और न्यूक्लियाई और डिफरेंट शेप्स में न्यूक्लियाई होते हैं उनके। फर्दर अब ये फॉर्म कहाँ पे होती है, जो ग्रैन्युलोसाइट्स है पर्टिकुलरली, वो कहाँ से फॉर्म होती है? दे आर फॉर्म फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स। ओके, दे आर फॉर्म फ्रॉम द माइलॉइड स्टेम सेल्स। अभी ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है, ये पर्टिकुलरली मेसोडर्म का जो टिश्यू होता है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की, यानी अगर पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं, तो जब उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, एक सेल से शुरू होती है, पता है सबको, और फिर वो एक सेल जो है मेटोटिकली फर्दर डिवाइड और रिडिवाइड होती है, और 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और दी एंडोडर्म। और ये तीनों जर्म लेयर्स के जो सेल्स है, वो सेल्स फर्दर क्या होते हैं, तो डिफरेंशिएट होते हैं, और उसमें उसी से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है इन द फ्यूचर डेवलपमेंट, वो ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं या फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो मेसोडर्म के सेल से, ये मेसोडर्म के सेल से ये माइलॉइड स्टेम सेल्स फॉर्म होते हैं, और ये माइलॉइड स्टेम सेल्स से आगे जाके क्या होता है, तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स सारे डेवलप होते हैं। ओके, ब्लड के ये जो WBC के जो ग्रैन्युलोसाइट टाइप है, वो माइलॉइड स्टेम सेल से फॉर्म होते हैं। और एक बार ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स फॉर्म हो गए, तो वो डिवाइड नहीं होते। ओके, दे डू नॉट डिवाइड एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 72% ऑफ टोटल WBC। ओके, तो जो एक बार वो फॉर्म हो गए, तो वो डिवाइड नहीं होंगे, उनकी डेथ ही होगी। ओके, वो सेल डिवाइड होके दूसरे, उससे दूसरे WBC नहीं फॉर्म होंगे। तो ये हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 72%। टोटल जो WBCs है, उसमें से ग्रैन्युलोसाइट्स कितने होते हैं? 72%। फर्दर, ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो साइटोप्लाज्म में हमने कहा है कि वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो क्या होते हैं वो ग्रैन्यूल्स? दे आर एक्चुअली सिक्रीटरी वेसिकल्स। क्या है वो? सिक्रीटरी वेसिकल्स है, विच कंटेन वेरियस सिक्रीशंस एंड एंजाइम्स। तो ये वेसिकल्स में क्या होता है? सिक्रीशंस होते हैं डिफरेंट, और उसमें एंजाइम्स होते हैं। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 डिफरेंट टाइप्स है। और जो जो ग्रैन्यूल्स है, वो ग्रैन्यूल्स थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, दीज granulocytes are classified into 3 types. One is neutrophil, second is basophil, and third is the acidophil. So let us see these types of granulocytes. Okay, so first जो type है granulocyte का, that is the neutrophil. Okay, so the granules are fine. तो उसमें जो granules होते हैं, वो granules का क्या होते हैं? फाइन granules होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पर्पल, डार्क पर्पल कलर के डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, they are the granules. Okay, so ये इनका नंबर भी ज्यादा होता है, large in number. Okay, and they are distributed, evenly distributed होते हैं, and with a new, they dye with a stain with a neutral stain. Okay, so laboratory में कुछ colorful डाइज होते, अगर ये डाइज हम कुछ सेल्स पे डाले, तो वो सेल्स का जो नेचर है, उसके अंदर जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से वो सेल्स क्या हो जाएंगे, कुछ स्टेन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और या फिर कुछ स्टेन्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये वाले जो सेल्स है, अगर उनपे ये कलर डाला, या फिर वो डाई जो है डाला, तो न्यूट्रल स्टेन से वो क्या हो जाते हैं? कलरफुल होते हैं, यानी डाई कलरफुल हो जाते हैं। कौन से स्टेन से? न्यूट्रल स्टेन से, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। ओके, तो उनका नंबर जो है टोटल 70% ऑफ टोटल WBC। सो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 70% होते हैं। अब शेप आप देख रहे हैं, स्पेरिकल है। न्यूक्लियस जो देख रहे हैं आप, उसका देखिए लोब है, ये एक लोब, ये दूसरा और तीसरा। सो 2 से 7 लोब्स भी हो सकते हैं। ओके, सो 2 से 7 लोब्स भी हो सकते हैं इन बिटवीन दिस रेंज। यस, यहाँ पे 3 लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्दर,
एबल टू परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट। ओके, सो डायपेडेसिस का जो मूवमेंट हमने देखा था कि ये अपना शेप थोड़ा सा चेंज करके ये कैपिलरी से वॉल से बाहर आ सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स वो काम कर सकते हैं। एंड दे आल्सो परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस। क्या करते हैं वो? फैगोसाइटोसिस, यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसको क्या करते हैं? वो एनगल्फ कर लेते, ओके, यानी खा लेते, अपने अंदर उसको ले लेते। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ phagocytosis. So it is very important phenomenon carried out by this neutrophils. Okay, now they are responsible, yes, तो phagocytosis में की वजह से क्या करते हैं वो? They are responsible for destroying pathogen by the process of this phagocytosis. और जो पस है इज अ मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफिल्स। तो अभी कहीं अगर टिश्यू डैमेज हो जाता है, हमारी बॉडी में कुछ इंजुरी हो जाती है, वुंड हो जाती है, तो हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो इंजुरी में या क्या हो जाता है, तो पस ऐसे येलो कलर का लिक्विड फॉर्म हो जाता है, और वो पस, उसको पस बोलते हैं। उसमें होता क्या है? तो डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डैमेज टिश्यू, और वो कुछ माइक्रोब्स उसमें होते हैं इन द पस। ओके, तो ये तो हो गया न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप ऑफ granulocytes is called as a basophils. Okay, or they are also called as a cyanophils. So they have a few granules. So granules जो है उनमें कम होते, few होते, but they are the granule size is large. ग्रैन्यूल का साइज क्या होता है? लार्ज होता है। उसके बाद ये जो सेल्स है ये बेसिक स्टेन से क्या हो जाता है? कलरफुल बनते हैं, यानी स्टेन हो जाते हैं बेसिक स्टेन से। और फॉर एग्जांपल लाइक मिथिलीन ब्लू। ओके, मिथिलीन ब्लू जैसे स्टेन से ये क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं या फिर स्टेन हो जाते हैं। दे आर नॉन फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी नहीं कर सकते, सो दे आर नॉन फैगोसाइटिक। स्मॉल है, स्पेरिकल सेल्स है। अब उनका परसेंटेज भी बहुत कम है, 0.1 0.5 टू 0.5 टू 1% ये होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के। ओके, एंड न्यूक्लियस आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया यहाँ पे, ये इस साइड इस तरह से उनका न्यूक्लियस होता है, ट्विस्टेड न्यूक्लियस होता है। ओके, इन बेसोफिल्स। और दे आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशंस। तो ये पर्टिकुलरली कुछ इन्फेक्शन जब हो जाता है तब, या फिर कुछ एलर्जिक कंडीशंस जब होती है, तो उस टाइम पे ही ये जो सेल्स है वो ब्लड में होते हैं, नॉर्मली ये ब्लड में नहीं। एक सेकेंड। यस, सो उनका बेसोफिल्स का जो फंक्शन है, दैट इज दे आर प्रेजेंट, यस, दे सिक्रेट द हेपारिन। तो हेपारिन क्या होता है? हेपारिन इज अ एंटीकोएगुलेंट, यानी ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देना। ओके, व्हेन ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है एट दैट टाइम, जो भी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स क्या होने चाहिए? ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं होना चाहिए। ओके, तो जमा नहीं होना चाहिए, वो ब्लड जो है उसको क्लॉट नहीं होना चाहिए। तो उसकी उस एंटी एज अ एंटीकोएगुलेंट कौन काम करता है? हेपारिन, व्हिच इज सिक्रेटेड बाय दिस बेसोफिल्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरिड आउट बाय दिस बेसोफिल्स। उसके बाद जो हिस्टामाइन, एक जो अदर सब्सटेंस ये सिक्रेट करते हैं, दैट इज द हिस्टामाइन। अब ये हिस्टामाइन क्या है? It is involved in inflammatory and allergic reaction. So अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर अगर कुछ मॉस्किटो वगैरह कुछ, या कोई भी इंसेक्ट जब काट लेता है, तो वहां पे एक रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे, ऐसे हॉट फील होता है उस जगह पे। तो दैट इज द इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिएक्शन जो है वो जो भी रिएक्शन होता है, तो वो हिस्टामाइन की वजह से होता है। ओके, सो ये जो सेल्स है वो क्या करते हैं? हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसकी वजह से क्या होता है? तो इन्फ्लेमेटरी और हाइपर सेंसिटिव, और तो और एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे जो हाइपर सेंसिटिविटी दिखाते हैं सेल्स, तो वो भी ड्यू टू दिस हिस्टामाइन। ओके, और एक सब्सटेंस ये सिक्रेट करते हैं, दैट इज अ सेरोटोनिन, which is called as a happy chemical, और happy hormone कहा जाता है उसको, and it contribute to happiness and well being. Okay, तो जो happiness का जो feeling है, that actually take that actually due to this serotonin. Okay, yes, तो और भी एक फंक्शन है उसका, हम देखेंगे आगे। yes,
जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है, दे आर कॉल्ड एज दी eosinophils और एसिडोफिल्स। थर्ड टाइप ऑफ जो भी ग्रेन्युलोसाइट्स है, दे आर कॉल्ड एज eosinophil और एसिडोफिल्स। अब ये जो सेल्स है, ये दे कंटेन द लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स। ओके, तो दे कंटेन, यहाँ पे जो भी ग्रेन्यूल्स है, दे आर कॉल्ड एज लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स एंड दे आर स्टेन टू रेड कलर विथ एसिडिक स्टेन। अगर इन पे एसिडिक स्टेन डालते हैं रेड कलर का, तो ये क्या हो जाते हैं, रेड कलर में स्टेन हो जाते हैं। अब ये जो यूसिनोफिल्स है, इनका परसेंटेज कितना है, 1 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ओके, एंड देयर न्यूक्लियस एज यू कैन से इट इज बाइलोब्ड। सो दो लोब दिख रहे हैं यहाँ पे, सो बाइलोब न्यूक्लियस दे हैव। देन they destroy antigen antibody complex by phagocytosis। तो ये जो सेल्स है, वो एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अभी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरे जो टाइप के सेल्स है अग्रेनुलोसाइट्स, तो वो फॉर्म करते हैं। अब जो फॉर्म होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, ये इवोसिनोफिल्स करते हैं। कैसे करते हैं, बाय फैगोसाइटोसिस। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में जो पहले वाले हैं न्यूट्रोफिल्स और जो लास्ट वाले इओसिनोफिल्स, ये दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन जो बीच वाले बेसोफिल्स है, वो फैगोसाइटोसिस नहीं करती। ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ देयर नंबर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द एलर्जिक कंडीशंस। अब इनका एलर्जिक कंडीशन के टाइम नंबर जो है, वो उनका इंक्रीज होता है एंड दे शो दी एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। ओके, तो जो पहले वाले बेसोफिल सेल्स थे, जो हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन, अब ये एलर्जिक कंडीशन जो है, वो उसको सेटल भी करना है, बैलेंस भी करना है, या फिर इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है, जो भी हॉट या फिर कुछ इंसेक्ट ने बाइट किया है, तो वो थोड़ी देर तो आपको थोड़ा सा हॉट उस जगह पे से इरिटेटिंग या खुजली जैसा कुछ महसूस होगा, तो वो हिस्टामाइन की वजह से होता है। लेकिन वो जो है, वो उसको सेटल भी करना है, उसको खत्म भी करना है उस दर्द को, तो उसके लिए कौन काम करता है, इओसिनोफिल्स। वो क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एज दे प्रोड्यूस दी एंटी टॉक्सिन्स। तो वो एंटी टॉक्सिन, किसी भी टॉक्सिन के अगेंस्ट वो केमिकल सिक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटी टॉक्सिन्स। तो ये हो गए तीनों टाइप्स ऑफ तीनों टाइप्स ग्रैन्युलोसाइट्स के। अब देखते हैं हम अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, जो डब्ल्यूबीसी का सेकंड मेन टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये अग्रैन्युलोसाइट्स है अबाउट 28% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। कितने हैं वो, 28% है टोटल डब्ल्यूबीसी के। ओके, और ग्रैन्युलोसाइट्स कितने, 72%। टोटल ग्रैन्युलोसाइट्स कितने, 72, और फिर बच्चे कितने, 28। सो अग्रैन्युलोसाइट्स आर 28%। अब ये जो सेल्स है, दे आर, their name itself tells that agranulocytes, यानी granules are absent, उनके साइटोप्लाज्म में granules absent होते हैं। ओके, और ये फॉर्म कहाँ से होते हैं, कौन से सेल से, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ओके, ये जो फॉर्म होते हैं मेसोडर्मल टिश्यू से ही, ये लिम्फोइड स्टेम सेल, और वहां पे जो फॉर्म हुए थे माइलॉइड स्टेम सेल, ये दोनों भी, लिम्फोइड और माइलॉइड दोनों भी जो है मेसोडर्म से ही फॉर्म होते हैं। तो उसमें से बेसिकली अग्रैन्युलोसाइट्स जो है, वो लिम्फोइड स्टेम सेल से फॉर्म होते, और वो डिवाइड हो सकते, दे कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ओके, कि वो वाले जो है मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स, वो डिवाइड नहीं होते बाय माइटोसिस, और ये जो है, वो डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियाई ऑफ अ ग्रैन्युलोसाइट्स आर लार्ज। तो उनका न्यूक्लियाई भी लार्ज साइज का होता है, बट दे आर नॉट, बट लोब्यूलेटेड नहीं होता। ओके, लाइक द ग्रैन्युलोसाइट्स। और इसके भी दो टाइप्स है अग्रैन्युलोसाइट्स के, एक तो है लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोसाइट्स। सो लेट अस सी lymphocytes. Okay, so they are the smallest of all WBCs. WBC में से सबसे छोटे जो होते हैं, वो lymphocytes होते हैं। Okay, and they have the large spherical nucleus. आप देख रहे हैं इनका जो न्यूक्लियस है, पर्पल कलर में दिख रहा है पूरा, दैट इज द न्यूक्लियस। तो बहुत लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है इनका। और अभी ये जो है, दे कॉन्स्टिट्यूट दी 25 to 30% ऑफ टोटल WBC। सो टोटल डब्ल्यूबीसी में से इनका जो नंबर है, वो 25 to 30% इतना होता है। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, ओके, ये जो लिम्फोसाइट्स है, वो उनके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स, और सेकंड जो दैट इज द टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं,
उनको बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे मैच्योर इन बोन मैरो का बी, यानी इसलिए उनको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स। ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जो हमारी जो इम्यूनिटी है वो दो तरह से जो पैथोजन को किल करने का काम करती है। एक तो या तो एंटीबॉडी सिक्रेट करके वो पैथोजन को मारेंगी, या वो जो पैथोजन होता है उसको एंटीजन बोलेंगे हम। तो वो पैथोजन के साथ बाइंड हो जाती है ये एंटीबॉडी, एंड दिस एंटीबॉडीज आर सिक्रेटेड बाय दिस बी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और एंटीबॉडी क्या कर देते, खत्म कर देते उस पैथोजन को। ओके, तो इस तरह से जब बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, so that is called, that immunity is called as a humoral immunity. Okay, और it is highly specific एंटीजन। ओके, एंटीबॉडी इम्यूनिटी तो हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी वहां पे सिक्रेट होती है, इसलिए वो स्पेसिफिक होता है। हर एक एंटीजन के लिए अलग से एंटीबॉडी वहां पे फॉर्म होंगे। ओके, सो सेकेंड जो टाइप है lymphocyte का, that is the T lymphocytes, and they mature in thymus, okay, which is one of the gland जो हार्ट पे होती है, that is called as a thymus gland. Okay, so this is the thymus gland, वहां पे ये मैच्योर होते हैं। सो थाइमस का टी, इसलिए इनको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट्स। ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, तो ये क्या करते हैं, किसी पैथोजन, समटाइम्स जो पैथोजन है उनको क्या कहता है, एनगल्फ कर लिया जाता है, या फिर उसको एनगल्फ करने के बाद कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं ये सेल्स, और वो क्या कर देते हैं, वो जो एंटीजन है या फिर जो पैथोजन है उसकी बॉडी को कंप्लीट से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसको किल कर देते हैं। ओके, सो ये जब ये टी लिम्फोसाइट से वो डिफरेंट इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये इसका डिटेल अब देखेंगे जो हेल्थ डिसीजेस में है, तो उसका आपको लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं, और किस तरह से ये किसी पैथोजन या अदर बॉडी, फॉरेन बॉडी को किस तरह से ये डैमेज करते हैं और डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें ये काफी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हो गया बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। सो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है वो जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज थ्रू द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, ये हो गया लिम्फोसाइट्स के बारे में। अभी जो ग्रैन्युलोसाइट्स का सेकेंड जो अग्रैन्युलोसाइट्स का जो सेकेंड टाइप है, दैट इज अ मोनोसाइट्स। ओके, अब ये मोनोसाइट्स कैसे होते हैं, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जो साइज में बड़े होते हैं, दैट इज द ये मोनोसाइट्स। अब उनका न्यूक्लियाई कैसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल कलर में, ये किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड उनका न्यूक्लियस होता है। इनका नंबर कितना आता है, 3 to 5% जो है वो डब्ल्यूबीसी ये होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में से। उसके बाद दे आर मोनोसाइट्स आर एक्टिवली मोटाइल एंड गिव्स राइज टू मैक्रोफेजेस। ओके, तो ये जो मोनोसाइट्स है वो क्या करते हैं, उनसे मैक्रोफेजेस जो है वो मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये जो मैक्रोफेजेस है वो क्या करते हैं, तो फैगोसाइटिक की प्रोसेस करते हैं, फैगोसाइटोसिस की, यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर डैमेजिंग सब्सटेंस को या पार्टिकल को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड डेड और डैमेज टिश्यू। कोई भी डेड और डैमेज टिश्यू है तो उसको भी ये क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो ये हो गए डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स। ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 टाइप हमने देखे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल। ओके, और जो अग्रैन्युलोसाइट्स है तो उसमें 2 टाइप हमने देखे, एक तो लिम्फोसाइट्स और ये वाला मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे तो हो गए डब्ल्यूबीसी कंप्लीट। ओके, और जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स यानी ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने देखे थे, एक तो आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स। ओके, दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी, उसको आज हमने ये उसके टाइप्स और सब टाइप्स भी देखे। और उसके बाद तीसरा जो ब्लड में सेल्स होते, दे आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ओके, तो क्या होते हैं ये थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स? सो these are the cellular fragments formed from the large cells called as a megakaryocytes. Okay, तो ये
मेगा कैरियोसाइट्स के जो सेल्स है बोन मैरो में जो होते हैं, तो वो सेल्स का फ्रेगमेंटेशन होता जाता है, यानी उनके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स के, और उन्हीं टुकड़ों से क्या बनते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बनते हैं। ओके, कोई पर्टिकुलर उनका शेप ऐसा नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में से सबसे छोटे, वेरी स्मॉल और ओवल शेप नॉर्मली होते हैं। ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। उनका जो नॉर्मल काउंट होता है कितना होता है, 2.5 टू 4.5 lakhs, इतना इनका काउंट होता है पर mm क्यूब ऑफ अ ब्लड। ओके, उसके बाद इफ द नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट डिक्रीजेस, अगर नंबर कम हो जाता है इनका इन अ नॉर्मल कंडीशन, इट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब, जब नंबर डिक्रीज हो जाता है ना। अब ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन कॉजेस इंटरनल ब्लीडिंग, तो इस कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, विच इज कॉल्ड एज अ हीमोरेज। ओके, यानी इंटरनली कोई ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक अगर हो गई, तो वहां पे ये इनका इनका नंबर कम होने की वजह से, क्योंकि ये जो भी सेल्स है ये क्या काम करते हैं, जो अगर ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो या बॉडी के अगर कोई बाहर से भी कोई डैमेज या फिर कोई इंजुरी हमको हो जाती, तो ये सेल्स क्या करते हैं, वो ब्लड सेल्स को हीलिंग करने का, प्लग करने का काम करते हैं, यानी वहां पे रप्चर टिश्यू को रिकवर करने का काम ये करते हैं। वो ये सिलाई का काम करते हैं, इन शॉर्ट आप बोल तो ब्लड वेसल को क्या करते हैं, वो जहाँ पे वो डैमेज हुआ है वो डैमेज क्योर करने का काम ये सेल्स करते हैं। अगर इनका नंबर कम हो जाए तो फिर ये ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो बाहर निकल के बॉडी के टिश्यू में पहुंच जाएगा, और इसको क्या कहेंगे, हिमोरेज कहते हैं, दैट इज अ इंटरनल ब्लीडिंग। उसके बाद प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स दे सिक्रेट द फैक्टर, तो ये सेल्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं एंड दैट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो जो हमने कहा कि ब्लड वेसल को ये सिलवाने का काम करते हैं, तो कैसे सिलवाते हैं, तो वहां पे जो भी वो ब्लड वेसल रप्चर हुई है वहां पे प्लग फॉर्म करते हैं, यानी सीलिंग करते हैं, सील करते हैं। और उसके बाद अगर इंजुरी, अगर कोई टिश्यू अगर इंज्योर होता है बाहर से, हम कोई वुंड होती है, तो वहां पे एक ब्लड जो भी सीलिंग का काम, और प्लेटलेट प्लग या फिर थ्रोम्बोस यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां से, तो फर्दर जो ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी से बाहर जा रहा है, तो वो प्रिवेंट हो जाएगा और ब्लड लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। तो मतलब किसी की अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो डेथ भी हो सकती है। ओके, सो इन दिस वे दे परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अलग से हम लोग एक और वीडियो में इसके बाद जो है दैट इज वही देखेंगे कि हाउ द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल्सो दिस सेल सिक्रेट अ सेरोटोनिन और लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ओके, तो ये सेरोटोनिन भी रिलीज करते हैं, जो सेरोटोनिन क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी उनका जो रास्ता होता है ब्लड फ्लो होने का, उसको क्या बना देते हैं, वो छोटा बना देते हैं। ओके, और इसकी वजह से जो ब्लड अभी बाहर आ रहा है, अगर कुछ इंजरी हो गई तो वो आना थोड़ा सा फ्लो उसका कम हो जाता है। ओके, और इस तरह से ये ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड को लॉस होने से प्रिवेंट करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो ये हो गए ब्लड के तीनों टाइप्स ऑफ सेल्स हमने देख लिए। दैट इज द ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कंपोज्ड ऑफ अ प्लाज्मा, देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं इरिथ्रोसाइट्स, देन ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो ये यहाँ पे हो जाता है ब्लड कंपोजिशन कंप्लीट। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी द ब्लड clotting mechanism. Okay, till then, bye, thank you.